There are 10 Gurus in Sikh faith, include Guru Nanak Dev Ji, Sikhism founder. Guru Angad Dev Ji created a new script Gurumukhi. Guru Amar Das Ji made a langar an integral part of Sikhism. Guru Ramdas Ji founded the city of Amritsar. Guru Arjan Dev Ji built the Golden Temple in Amritsar and compiled the Holy Granth Sahib. Guru Hargobind Dev Ji erected the Akal Takht. Guru Har Rai Ji, Guru Har Krishna Ji, Guru Tegh Bahadur Ji sacrificed himself to protect Hindu of Kashmir, and Guru Gobind Singh Ji transferred the authority of Guru to the Guru Granth Sahibs and organized the Sikhs into a material group called the Khalsa and also assumed the title of Singh. Takhat Sri Keshgarh Sahib or Anandpur Sahib is one of the most revered Gurudwaras of all times because of its past, which is closely knitted with the traditions of Sikh religion. History. Located on the beautiful lower spurs of Himalayas, Anandpur Sahib is considered as the second Amritsar due to its spiritual value. The shrine was found by the 9th Sikh Guru, Guru Tegh Bahadur, in year 1665 when Guru went to Bilaspur to attend mourning for Raja Deep Chand of Bilaspur. Then the Dowager Rani Champa of Bilaspur offered to give Guru a piece of land in her state. Instead of accepting it as a favor, the Guru rather bought the land for ₹500. The site was large enough to circumscribe villages of Lodhipur, Mianpur and Sahota. Eventually, Guru commenced work and named the new site as Chak Nanaki after his own mother Nanaki. However, it is Chak Nanaki which is now famously known as Anandpur Sahib. Diverse followers. Takhat or seat of authority is the highest seat of temporal authority in Sikhism. Earlier, it used to be a court where military decisions were taken in the presence of Guru Granth. One of the 5 Takhats, Anandpur Sahib is abundantly followed by people from diverse backgrounds. The small town Anandpur inhabits humongous Gurudwara which has a square hall with a balcony and courtyard in front which gives a breathtaking view of the city. The shrine has its own importance because of various reasons. The Gurudwara includes a Bhora Sahib, which is a room built away from the din of life. In this Bhora Sahib, the 9th Guru, Guru Tegh Bahadur used to meditate and contemplate about spiritual being. What else to watch out for? While visiting the city of Anandpur, one cannot afford to miss a visit of various shrines nearby which are having their own historical value. For example, Gurudwara Guru Ka Mahal, Thara Sahib, Gurudwara Sheeshganj Sahib, Akal Bunga and Virasat-e Khalsa. Virasat-e Khalsa is new and innovative digital museum to spread the ideas of Sikhism. The museum has digital painting, robots and light shows which effectively spread stories and teachings. This majorly interests children and deep roots the idea of culture and tradition. Hola Mohalla. Anandpur comes to life during the festival of Holi or Hola Mohalla, where people gather in large number to celebrate the festival of colors. Each year, Hola Mohalla marks the assembly of lakhs of devotees from all over the country, reverberating the ideas of tolerance, love and kindness towards mankind. If you enjoyed watching our video, do share it and don't forget to subscribe to our YouTube channel. आसाम के राजा राम राय को पुत्र का वरदान। गुरु तेग बहादुर जी की महिमा सुनकर आसाम देश का राजा अपनी रानी सहित गुरुजी की शरण में आ गया। उसने गुरुजी के आगे भेंट आदि अर्पण की। भेंट अर्पण करने के पश्चात उसने प्रार्थना की कि महाराज, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, मुझे पुत्र का वरदान दो जो हमारे राज्य का मालिक बने। गुरुजी राजे तथा रानी की श्रद्धा व प्रेम पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गुरुजी ने वचन किया कि आपके घर एक धर्मात्मा तथा उदार चित्त पुत्र होगा। गुरुजी से ऐसा आशीर्वाद लेकर राजा व रानी बहुत प्रसन्न हुए। यह वचन करके गुरुजी ने अपने हाथ की मोहर का एक निशान राजे के माथे पर लगाकर कहा
कि ऐसा निशान आपके घर होने वाले पुत्र के माथे पर भी होगा, तब तुम यह समझ लेना कि यह पुत्र गुरु घर की कृपा है। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत प्रसन्न थे। गुरुजी का चरणामृत लेकर उन्होंने सिक्खी धारण कर ली। गुरुजी के आशीर्वाद से उनके घर पुत्र पैदा हुआ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। इस वीडियो में मैं आप सबको गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे प्यारे हाथी के बारे में बताना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के पास एक बहुत ही खूबसूरत हाथी भी था, जिसका नाम उन्होंने प्रसादी हाथी रखा था। वैसा हाथी पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास भी नहीं था। उस टाइम के राजा औरंगजेब के पास भी इतना अच्छा और इतना खूबसूरत हाथी नहीं था, जिसकी वजह से वो गुरु गोबिंद सिंह के साथ थोड़ा जेलस भी फील करता था। ये दिखने में इतना खूबसूरत था, जो एक बार इसको देख लेता था वो देखता ही रह जाता था। इसके माथे के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर का निशान था। सूंड से लेके पूंछ तक एक वाइट कलर की लाइन थी, जो बहुत ही कम किस्म के हाथियों में मिलती है। और माना जाता है कि ऐसे हाथी थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। थाईलैंड में जो चिंगमई नाम का इलाका है वहीं पे पाए जाते हैं। शायद ये हाथी भी वहीं से आया था, क्योंकि ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी को आसाम के राजा रतन राय ने तोहफे में दिया था। और रतन राय के जो पिताजी थे राम राय जी, उनका थाईलैंड के चिंगमई नाम के इलाके के राजा मई चिंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। तो माना जाता है कि ये हाथी थाईलैंड से उन्होंने रतन राय जी को तोहफे में दिया और आगे रतन राय जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी को ये तोहफे में दिया। तो ये हाथी की खास बातें क्या थी? सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही खूबसूरत था। दूसरी बात, ये इतना समझदार हाथी था कि ये गुरु गोबिंद सिंह जी को जब भी गुजरते थे तो सलाम दिया करता था। उनके आगे अपने सूंड को उठाकर उनके आगे सिर झुकाया करता था, जिसको देख के संगत बहुत ही खुश होती थी। और दूसरी खूबी इसमें यह भी थी कि जब गुरु जी बाहर से आते थे तो ये अपनी सूंड में पानी भरता था और गुरु गोबिंद सिंह जी के पैर धोता था। और तीसरी बात, जब गुरु गोबिंद सिंह जी शिकार पर जाते थे या फिर अपने तीर से तीरंदाजी करते थे, तो जैसे जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी बाण छोड़ते थे और वो अपने निशाने पे लगता था, तो ये हाथी जाता था उन तीरों को वापस गुरु गोबिंद सिंह जी के पास लेके आता था। और चौथी बात ये थी कि ये हाथी रात के समय सूंड में मिसाल पकड़ के गुरु जी के पीछे पीछे चलता था, उनको आगे रास्ता दिखाता था। और ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी को सिर पे चवर भी झुलाता था। जैसे हमने देखा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सिर के ऊपर चवर घुमाया जाता है, तो ये हाथी गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर चवर घुमाता था और संगत में संगत करता था। तो ये सब खूबियां उस हाथी में थी। इसीलिए इस हाथी को कई राजे वहां के अपने घर में भी लेके जाना चाहते थे। इस हाथी को वो हथियाना चाहते थे, लेकिन वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हुए। इस हाथी को गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत प्यार करते थे और हमेशा अपने साथ रखते थे। लेकिन 1705 में जब अनंतपुर साहिब की जंग हुई, तो अनंतपुर साहिब को 8 महीने तक मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने घेर के रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर से अंदर सामान जाना बंद हो गया। खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी आ गई, और जिसकी वजह से ये हाथी बहुत भूखा हो गया और एक बिल्कुल स्केल्टन की तरह बन के रह गया। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद अपने हाथों से उस हाथी को तीर मारकर उसकी ज़िंदगी से मुक्त कर दिया। और इसी नस्ल का एक और हाथी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा भूमिबल, जिनकी 2016 में मौत हो गई, उनके महल में आज भी है। पूरी दुनिया में अभी एक ही बचा है जो उनके पास है, उनके अलावा किसी के पास नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।